in my place and we are just online connected to the cameras. So it is little difficult to pay attention or be concentrate, focused on one subject, because wherever we are sitting might be the towards our left, right or back side something is going on, and it's possible that our attention goes to these all things. But then also I request all of you that please pay attention here, because Gita in nutshell means we are going to see the Gita with the bird eye view. Just ऊपरी हम देखने वाले हैं गीता में क्या लिखा हुआ है या क्या subjects matter cover हुए हैं. We are not going into the depth of Gita. We are just going to see the subject matter what all are discussing in Gita. In between, I may ask some questions to you, all of you, and you people can don't start your microphone and give me answer. Just start your answer. So I will come to know very easily. Second request to all of you that for your present purpose, for marking your attendance, we want that whatever the name you are entering or you log in, so the login don't keep something like 1, 2, 3 ABCD and all. You please write your name, so it is very easy for us to recognize you and mark your attendance. If you are keeping something, something like that 1984, 1953 or something, so it's very difficult. It might be your birthday and it is very nice, but for us to very difficult to mark your attendance, so please put your names. We can easily mark your attendance. So we are turning towards our today's main subject matter, that is the Gita in nutshell, a higher dimensional science. That is what our today's seminar, because this is the series of 3 seminars or series of 3 lectures. That lectures will continue 1 hour, and in that we are going to see within the 3 days the Gita through the bird eye view, क्या लिखा है गीता के अंदर, पंछी की तरह देखने का प्रयास करें. So the first topic I gave the name, that is the higher dimensional science, unlocking Vedic history. एक higher dimension, ऊपरी विज्ञान हम सीखने का प्रयास करेंगे और वैदिक सिस्टम जो है जो भी वो दर्शन दिया हुआ है हमें उसको खोलने का प्रयास करेंगे. So in this Gita in nutshell program, the higher dimension science, before the starting, we have to see that what is exactly the subject matters of Gita. What all are the subject matters given in the Gita? We have to see that, because Gita even is a Vedic book, then also the subjects matters in each and every books in the Vedic. Some subjects are there or some subjects matters. Today's book, what we are seeing, that book are like a chapter wise. Chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4. It goes the chapter wise. But the Vedic book never goes the chapter wise. Because today what we are seeing, the books and all are designed for one particular purpose. But in the Vedic time, the books was not designed for particularly that this subject is discussed in this book, that subject is discussed in that book. Not like that. In the Vedic time, it was not that each and every book or each and every subject is decided. The Vedic knowledge, it's like a question and answer. Some sadhus or some rishi munis are sitting under some trees or somewhere in the jungle, and somebody met to them and they are asking the questions, and the person, the rishi munis or somebody who's giving answer. And when the question answer goes, that time the things not goes like what we want. The things goes that the way question will ask, the questioner is asking the question, that way the person will give the answer. So in the Gita also the same thing is happening. In Bhagavad Gita,
Krishna is speaking with the Arjuna, and Arjun is asking the question to Krishna. And the way Arjun is asking the question, in the same manner, Krishna is giving the answer to Arjun. So here also we are going to see the same way. So even Krishna is giving answer to the Arjuna's question, different questions. Then also the Mahatmas, the Rishis or the Sadhus are derived some lessons, some subject matters from Bhagavad Gita. The entire 700 shlokas where the Krishna is talking to the Arjuna, he spoke mainly on the 5 subject matters. These are the main 5 subject matters in the Bhagavad Gita. The first thing in the Bhagavad Gita which is discussed regarding the Jiva, soul, आत्मा, कुछ भी कह सकते हैं हम, जीव, आत्मा या अंग्रेजी में सोल कहते हैं. इस बारे में एक ये सब्जेक्ट मैटर है या ये एक टॉपिक है. नाउ यू डोंट आस्क मी, आप बोलोगे कि भाई कौन से अध्याय से लेकर कौन से अध्याय तक इसके ऊपर चर्चा हुई है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये प्रश्न उत्तर है. तो जहाँ जिस प्रकार का प्रश्न अर्जुन ने पूछा है उस प्रकार से ही भगवान ने उत्तर दिया है. इसलिए ये पूरा ये जो पांचों जो विषय वस्तु है वो सब जगह में आपको दिखेगा भगवान गीता में, अलग अलग जगह. हाँ, मोटा मोटी तौर पे थोड़ा बोल सकते हैं कि आत्मा के बारे में दूसरे अध्याय में वर्णन रहा है, लेकिन और भी कई जगह पर वर्णन रहा है. तो पहला जो विषय वस्तु है भगवत गीता में वो है जीव के बारे में, आत्मा के बारे में डिस्कशन किया है. The second subject matter in the Bhagavad Gita, that is the Kal. Kal means time. समय के बारे में चर्चा की गई है. The third subject matter discussed in the Bhagavad Gita, that is the karma, the action, activities, whatever we are doing, जिस तरीके के action, कर्म हम करते हैं, उसके बारे में भगवद गीता में चर्चा हुई है. The fourth subject matter which is discussed in the Bhagavad Gita, that is the Prakriti. प्रकृति के बारे में चर्चा हुई है. प्रकृति, in English we can say it's a nature. What is the material nature? How the material nature works? How it is relevant with the human life? कैसे हमारे जीवन के साथ ये सब चीजें निकली, इसके बारे में चर्चा की. And the fifth subject matter, 5वां विषय वस्तु है भगवद गीता में डिस्कस की हुई, वो है परमेश्वर या परमात्मा या भगवान. जो भी आप कह सकते हैं भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रूथ, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इसके बारे में चर्चा की है, उसको परमात्मा. सो आई जस्ट रिपीट अगेन फॉर you, all of you, and you please, you all can type it or text the message here that this subject matter of Bhagavad Gita. Very easily मुझे समझ में आ जाएगा कि आप ये 5 विषय वस्तु समझते हैं. आप लोगों ने लिखा है, जैसे आप दोहराता हूँ, 5 विषय वस्तु भगवद गीता में. भगवद गीता, फर्स्ट इज जीवा, दूसरा काल है, थर्ड वन इज कर्म, फोर्थ वन इज प्रकृति, एंड फिफ्थ वन परमात्मा और परमेश्वर. ये 5 विषय वस्तु भगवद गीता में डिस्कस की हुई. अभी हम थोड़ा सा हमारी तरफ कैमरा घुमा के अगर देखेंगे, चलो भगवद गीता में ये है, लेकिन हम इस संसार में क्या कर रहे हैं. जितने सारे जीवात्मा हैं, either it is the human or maybe the animal, what we all are doing in this material world, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं. So in one line the simple answer is that what we are doing here, we all are in the search of happiness. हम सभी लोग यहाँ पे एक ही चीज करने का प्रयास कर रहे हैं, and that is what, in search of happiness. हम आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं इस संसार में. Either you are working in multinational companies, I also used to work in multinational companies, might be you are doing your business, कोई अपना business कर रहा है, किसी भी प्रकार के व्यवसाय में जुड़ा हुआ है, but finally we are wanting happiness. हम आनंद की खोज में ही इस संसार, हर चीज से हम आनंद चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं. इस तरीके का आनंद चाहते हैं. क्या क्या करते हैं हम आनंद के लिए. कुछ लोग जो है वो तो आनंद ढूंढते हैं, खेल कूद में आनंद ढूंढते हैं, कई जगह पे घूमने जाएंगे, आज चीजें करेंगे. Might be they go for the picnic, they are doing some sport, they are
playing some sports, games and all, and they are searching the happiness in it. Some people are not having good habits, so they are searching happiness where? They are searching happiness in drugs, cigarettes, liquor, and dance bars and other places. There are so many places where they are searching the happiness. लोग ऐसे जगहों पे भी क्या कर रहे हैं? आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं. But finally, even we are searching the happiness, if we divide it, then our happiness is divided in 4 categories. Okay, हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये आनंद है क्या? कैसे हमको पता चलेगा कि आनंद कौन सी चीज में है या कौन सी चीज में हम आनंद ढूंढ रहे हैं? तो हम आनंद 4 चीजों में ढूंढते हैं. खाने में आनंद ढूंढ रहे हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, सोने में आनंद ढूंढते हैं. इसलिए लोग बहुत बार सोचते हैं कि नहीं सो जाओ, 10 घंटा सो जाओ, 12 घंटा सो जाओ. Particularly those who are the college students and all, I have visited so many IITs and NITs. The college students are sleeping almost like 9 hours, 10 hours. Exam खत्म हो गया तो 13-14 घंटा भी सो. So we are searching happiness in the sleeping. Third, we are searching happiness in the meeting. Having the relation with the opposite sex, we are searching happiness in that. And the fourth, we are searching happiness in the defending, in the protections. जो भी मेरी चीजें हैं, जो भी मेरी facilities है, either it is cars, homes, environments and all, it all should be how? It all should be protected. ये क्या रहे? Protected रहे, इसकी सुरक्षा बने. So we are searching happiness in the 4 places, which is the eating, sleeping, eating and defending. If you understand this 4 point, please write it and send to me. That is, the 4 are the important points. First, we saw the 5 subject matters in Bhagavad Gita. Now we are looking, अभी हम देख रहे हैं that where we all are searching the happiness, and that happiness we are searching in the eating, meeting, sleeping and defending. But the problem with it, that where we are searching the happiness, that happiness entire animals are searching, not only humans. If you go to the animals, they are also searching the happiness in these 4 places: eating, sleeping, meeting, and defending. Now, this eating, meeting, sleeping, and defending, whatever we are doing throughout our life, entire जीवन में हम जो भी चीजें कर रहे हैं, entire जीवन में हम जो भी चीजें प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, that is only these 4 things. These 4 things are there with us. और हम इन्हीं को फिर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? सोफिस्टिकेटेड वे से इसको और अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं. We are trying to make it little more sophisticated. That's it. Nothing out of these 4 things we are doing in the life. पूरे जीवन भर में हम ये 4 ही चीजें कर रहे हैं: ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड डिफेंडिंग. ना किसी को भी पूछो भाई जॉब क्यों कर रहे हैं, सब लोग बोलते हैं भाई पापी पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा, फिर वो चाहे जॉब हो, बिजनेस हो या और किसी भी काम हो. पापी पेट का सवाल मतलब क्या है? ईटिंग का ही है ना. Might be some people are eating in different food they get change, but finally purpose is the same, to fill our belly. Animals are doing the same activity, animals are doing the same. They are also having the same purpose, or our belly. Second thing they are doing, that the sleeping. For the sleeping, animal can sleep on the roads and roadside, somewhere on the tree. Some birds can sleep on the trees and everywhere. Humans, we are making a big bungalows, big bedroom, bungalow, pillows. कई सारे प्रकार की हम सुविधाएं बनाते हैं, लेकिन पर्पस तो सुना ही है. रास्ते में सोया हुआ आदमी और बेडरूम में सोया हुआ आदमी, एक बार नींद लगने के बाद तो पता नहीं चलता मैं कहाँ पे हूँ करके, मैं बेडरूम में हूँ या रास्ते पे सोया हूँ, कहाँ पे सोया हूँ. You can't understand. But we are making this arrangement and all for getting the happiness from the sleeping only. And meeting is the another kind of the people are having the happiness. The respected societies like the human societies are having the very wonderful vivaha sanskar and all, having the marriage life. Animals may don't have that kind of the life, but they are also searching the partner. Might be females are searching for men are searching the females, they are searching the partner. Even it's happening in animals. And finally, depending on the protection, we are having the so many different things for our protections. We are having the different
people, we make the police system, we made a system like army and all. Animals may have for defending their ways. They are having big nails, big teeth, and they are protecting themselves. But finally, purpose is the same. So these four things are the common either into the animal or into the human: eating, sleeping, meeting, and depending. If these four things are common in human and animal, don't forget, this is very important point we are making, that eating, sleeping, meeting, and depending. Because if these four things somebody can understand, then very easy to understand what is different between us and animal. Because we are also doing the four things throughout the life, or we are working very hard, or we are getting the happiness. इन्हीं चार चीजों से हम आनंद प्राप्त करते हैं, यही चार चीजों के लिए हम पूरे जीवन भर प्रयास करते हैं। फिर अगर यही चार चीजों के लिए अगर हम पूरे जीवन भर प्रयास कर रहे हैं, और पशु भी यही चीजों के लिए प्रयास कर रहे हैं, even animals are also struggling hard to get a happiness from these four things: eating, meeting, sleeping, and drinking. Then the big question comes that what is the difference between us and animals? If these four things are common between us and them, then what is the difference? हम में और पशुओं में क्या फर्क हो सकता है? अगर ये चारों चीजें हैं, वो जो इंसान भी कर रहे हैं, पशु भी कर रहे हैं, और हम में और उनमें क्या फर्क है? फिर हम अपने आप को श्रेष्ठ क्यों मानते हैं पशु से? बल्कि कई जगह देखा गया है कि पशु में हमसे कई गुना ज्यादा शक्ति होती है। कई सारे जगहों पे पशु हमसे अच्छे हैं। जैसे कि अगर हम रेस लगा दे किसी चीता के साथ, तो भागने में चीता हमसे अच्छे हैं। If you try to run with the deer also, then also deer can run faster than the human. कोई भी इंसान हिरन से तेज नहीं दौड़ सकता। Even for lifting a weight, elephant can lift a weight much more than the humans. So many places we saw that animals are having the more strength than us. Then who is the superior? श्रेष्ठ कौन है? मनुष्य श्रेष्ठ है या प्राणी श्रेष्ठ? शारीरिक शक्ति देखी जाए तो उनके पास कई ज्यादा शक्ति है एनिमल्स के पास हमसे। और अगर जीवन भर क्या कर रहे हैं, तो चार दोनों मिलके एक ही चीज कर रहे हैं: ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिपेंडिंग। Then what is exactly the difference between us? We are making so many skyscraper buildings, so much advancement and all. But finally, to making this all advancement, what we are doing? We are just making eating, meeting, sleeping and depending little sophisticated. थोड़ा सा हम उसको क्या कर रहे हैं? अच्छी तरीके से करने का प्रयास, बस, और ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और जो पशु है, वो जिस तरीके से अपनी जरूरतें पूरे कर रहे हैं, they are also happy with that. But when we are trying to fulfill our these four needs in sophisticated way, then we are getting so many problems. We are getting the problem of anxiety, disturbance, depressions. So when we are searching the happiness, but instead of getting the happiness, we are getting these all other problems. Doing the four things only: eating, meeting, sleeping and depending, but not doing the four things. We are getting the frustrations, we are getting depressions, we are absent-minded and so many things. Even we are trying to fulfill these four things with technical advancement. But दूसरी जगह हम अगर देखेंगे, पशुओं को अगर हम देखेंगे, तो वो लोग ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिपेंडिंग वो खा रहे हैं, अपने लिए कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ रहे हैं, सोने की जगह है उनकी, या वो अपनी रक्षा कर रहे हैं, उसमें वो लोग उतने फ्रस्ट्रेटेड नहीं है जितने हम लोग फ्रस्ट्रेटेड। उनको उसकी वजह से कभी स्ट्रेस नहीं आ रहा है, ना उनको कभी डिस्टर्बेंस होता है, ना कभी डिप्रेशन आता है, कोई चीज नहीं है। बट हम लोगों को, ह्यूमंस, हमें ये सब दिक्कतें, प्रॉब्लम आ रही है। So the question comes again, then who is the superior? Is it the animals are the superior or human is the superior? कौन अच्छा है इनमें? इनमें पशु अच्छे हैं या हम लोग अच्छे हैं? अभी इस
क्वेश्चन का अगर हमें आंसर चाहिए, वी आर जस्ट मूविंग अहेड इन द महाभारत. इन महाभारत वेरी वंडरफुल वर्स, एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा गया जिसमें मनुष्य और पशु के बीच का भेद बताया गया. महाभारत में कहा गया है, आहार निद्रा भय मैथुनंश सामान्यता पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना. Very wonderful, it is mentioned that ahar, nidra, bhaya, maithunancha. Ahar, eating, nidra, sleeping, bhaya, depending, maithun means meeting. Ahar, nidra, bhaya, maithunancha. Samanyeta pashubhir narana. In generally, these all things are common between humans and animals. आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच, ये चारों चीजें पशु में और इंसान में कॉमन है, उनमें कोई भेद नहीं है. लेकिन महाभारत कह रहा है कि एक भेद जरूर है, धर्मो हि तेषो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना. Only the difference is that human being consider superior when they inquire about the God, about the dharma. ह्यूमन और इंसान तभी प्राणियों से श्रेष्ठ होता है जब वो किसी चीज के बारे में इंक्वायरी कर सकता है, पूछ सकता है धर्म के बारे में. अभी फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट सेइंग यू दैट डोंट कंसीडर धर्मा मींस व्हाट इज द हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन and Christianity, Judaism, Buddhism, Jainism, and there are n number of the isms are there. Don't consider they are the dharmas. These all considered as the sectarians. ये पंथ है, इनको धर्म नहीं कह सकते हैं. धर्म की अपनी एक व्याख्या है जिसके बारे में we are going to see in next session regarding the dharma, or might be in this session we will see the definition. But now don't immediately consider dharma means we are talking something about the religions of the Hinduism or Buddhism or Jainism or something like that. Dharma is having the different definitions. But now just consider that the human is superior because they can understand dharma. They can inquire about it. Animals cannot inquire about it. Because animal can inquire only about the eating, sleeping, meeting and defending. वो एक ही चीज पूछते हैं. सुबह सुबह जब उठते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं कि पंछी बहुत ही सुंदर आवाज में गा रहे हैं, तो वास्तविकता में पंछी गाते नहीं. हम कहते हैं कि पंछी गाते हैं सुबह सुबह. कई सारे पोएट ने लिखा हुआ होगा, कई सारे कवि अपनी कविता में पंछी को भी दास्तां सुनाते हैं, लेकिन पंछी वास्तव में पंछी गाते नहीं है. उनको सुर, सारेगमा, पदानी, एंड ऑल दे डोंट नो अबाउट इट. पंछी सुबह सुबह उठने के बाद वो जिनका जो चहल पहल या जो चिल्लाने की आवाज है, जिनको हम उनका गाना कहते हैं, उनका गाना नहीं रहता है. वो यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वेयर इज द फूड, कहाँ पे मिलेगा आज खाने के लिए, कहाँ पे मैं सुरक्षित रह सकता हूँ ताकि मुझे दूसरे बड़े पंछी या बाकी किसी पशु से या किसी मनुष्य से कोई धोखा ना उत्पन्न हो. वेयर इज द पार्टनर ना मीटिंग, एंड देन फाइनली दे आर सर्चिंग दैट वेयर इज द प्लेस वेयर आई कैन टेक अ रेस्ट or take a nap. They are asking about this food. But human can inquire about something more. मनुष्य इससे कुछ ज्यादा चीजों के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, इससे कुछ ज्यादा चीज पूछ सकते हैं. ये चार चीजें तो पूछेंगे, बट ह्यूमन कैन इंक्वायर अबाउट द लाइफ. जीवन क्या होता है, मरना क्यों है भाई, मुझे तो जीना है, एंड बियॉन्ड इट. एंड इफ आई एम डाइंग देन व्हाट इज बियॉन्ड द डेथ. अगर मैं मर रहा हूं तो मृत्यु से अच्छा क्या है. ह्यूमन कैन डू द हायर इंक्वायरीज. ह्यूमन कैन ask the higher question. What kind of the question human can ask? Human can ask that why I am suffering. अगर इंसान को कुछ तकलीफ होती है तो वो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये तकलीफ मुझे क्यों हो रही है. पशु ये सब बारे में नहीं सोचते कि ये सब क्यों हो रहा है करके. Human can inquire about the purpose of life. पशु ये बात को नहीं पूछ सकते. उसे सारी चीजें पूछेंगे. They can't understand or they can't ask कि जीवन का उद्देश्य क्या है. Human can understand or he can ask that what is the God and what is his nature. अगर ये भौतिक संसार चल रहा है
इतना सारा पूरा विश्व चल रहा है, who was behind it? Is it something God? Does God exist? And what is his nature? And human can inquire about the eternal happiness. मैं अगर सुख ढूंढ रहा हूँ फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है? I'm not trying to search the unhappiness. I always want to be happy in the life. I'm searching for the happiness, and why I'm getting the other things. There are so many number of problems. ये सब चीजें क्यों आ रही है मेरे जीवन में? अगर मैं आनंद की खोज में हूँ तो मुझे दुख क्यों मिल रहा है? That human can ask. Animal cannot ask this one. That's why human life inquire. Human can do the inquiry. He can ask about it. And what he will achieve? He will achieve the permanent higher happiness. If humans are not asking anything, no inquiry, then what will happen? He can demonstrate to the lower form of life. He can go for the lower form of life. If he can inquire, he can get the eternal happiness. If he can't inquire, he goes for the lower form of life. So now when human can inquire, so what human can inquire? Human can very easily inquire that why I am suffering. मैं यहाँ पे दुख क्यों भोग रहा हूँ? अगर मैं दुख नहीं चाहता हूँ तो भी मुझे दुख क्यों आ रहा है? सेकेंड थिंग ह्यूमन कैन इंक्वायर अबाउट, दूसरी चीज पूछ सकते हैं इंसान, वो है क्या? व्हाट इज द रोल ऑफ लाइफ? जीवन का उद्देश्य क्या है? सी प्रॉब्लम्स आर देयर, वी ऑल आर सफरिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. इवन हम सुख की खोज में फिर भी हमें क्या मिल रहा है? दुख मिल रहा है. एंड इस रिवाइज थोड़ा सा पीछे जाके आप लोगों को फिर से एक बार लिखना चाहता हूँ. हमने पहले देखा भगवत गीता के 5 विषय वस्तु है: जीव, प्रकृति, काल, कर्म एंड परमात्मा, परमेश्वर. 5 चीजें हमने देखी. फिर हमने 4 चीजें और देखी जो कि इंसान और पशु में कॉमन है. जो 4 चीजें सब लोग ढूंढते रहते हैं: मीटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग एंड लिफ्टिंग. और उसके बाद अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कि इंसान से क्या कर सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल. धर्मो ही देशो आदि को विशेषो. धर्म के बारे में पूछ सकता है इंसान, पशु ये सब चीजें नहीं पूछ सकते. ओके, सो टिल दिस प्लेस it is clear. Then the next is that human can ask or human can inquire about his suffering, that why I am suffering. हम देखते हैं कि सभी के जीवन में परेशानियां आती है. किसी के जीवन में ऐसा नहीं है कि परेशानी है नहीं होता. किसी को लगता है कि मेरा दुख सबसे बड़ा दुख, बाकी सबके जीवन में खुशी है, मेरे अकेले के जीवन में दुख है. लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट मैटर से बोल रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर सफरिंग वी हैव टू सी दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सफरिंग. हम जो दुख जिस चीज को कहते हैं कि हमारे हम सब लोग आनंद की खोज में है लेकिन हमें आनंद नहीं मिल रहा है, हमें दुख मिल रहा है, तो दुख इस चीज को दुख कहते हैं, वो पहले देखना पड़ेगा. जब हम इंसान के दुख के बारे में कहते हैं तो मेरा इंडिविजुअल दुख नहीं होता. इंडिविजुअल दुख लाइक now we all are suffering from the corona. Corona pandemic is going in the world and entire world is suffering out of it. But even where corona is going, but then also somebody might be individual having some individual problems. Like after the corona start, government do the lockdown and all, and then some people who are they are having stress or they are having dukh, miseries in their life because the wine was not available. Wine shops was closed, and government opened the wine shop. Then they people can be done. But that problem is only who all are suffering because wine shop was not open. Those who are the drunkards. But those who are not drinking, they don't have that problem. They are not suffering from that problem. So when we are talking about the suffering, when we are talking about the human suffering, then there are some criteria. What criteria are there when we are talking about the human suffering? जब इंसान के दुख की बात करते हैं तो कुछ चीजें उसमें होनी चाहिए. उसमें से पहला क्राइटेरिया है that it's common to all. जब हम दुख की बात करते हैं तो वो सब लोगों को समान होना चाहिए. मेरे लिए मुझे आज खांसी आ गई तो मेरे लिए दुख की बात हो सकती है, लेकिन आप जितने भी लोग सुन रहे हो इसको, आपके लिए इसमें से कोई दुख की बात नहीं.
क्योंकि मेरी खांसी तो मेरे गले को प्रॉब्लम कर रही है, आप लोगों को गले को प्रॉब्लम नहीं कर रही, तो आपको क्या क्या दुख है उसमें? आपको वो सिर्फ दुख मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि मैं दुखी हूँ इसलिए इंसान को खांसी एक बहुत बड़ा दुख है। नो, जब मैं दुख की बात करता हूँ देन इट दैट दुख शुड बी कॉमन टू ऑल। सभी लोगों को ये बातें या वैसा दुख महसूस होना है, तभी तो उसको हम कह सकते हैं कि मनुष्य का दुख। दूसरा चीज होता है कि अगर दुख है, परेशानी या प्रॉब्लम है, दैट नोबडी वांट इट। तो ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए कोई चीज दुख में लगे, जैसे कि जिसको शुगर है उसको अगर आप मालपुआ देंगे तो उसके लिए दुख में चीज, लेकिन जिसको शुगर नहीं है उसके लिए तो बहुत आनंद की चीज है भाई। वो बोलेगा यार एक क्या है, 3-4 शुगर करो, थोड़ा मालपुआ, वो 3-4 मांगेगा, उसके लिए वो दुख की बात नहीं है। जब हम दुख की बात कहते हैं देन इट्स कॉमन टू ऑल एंड नोबडी वांट इट, कोई भी उसको नहीं चाहता है। ये दूसरा क्राइटेरिया हो सकता है दुख का। तीसरी चीज होती है दुख देखने का, nobody can avoid it। सबके लिए दुख कॉमन होना चाहिए, कोई भी उसको नहीं चाहता है, और कोई भी ना चाहते हुए भी कोई भी उसको अवॉइड नहीं कर सकता है, कोई भी उसको त्याग नहीं सकता है, सबके जीवन में करेंगे, उसी को दुख कर सकते हैं। Is it enough to clear all of you? If you are having some problem, then you can put it the message and drop your number. If you are having some questions also, so I may call back to you. I will call back to you definitely and give the answers to your questions if you are not understanding anything while our seminars, so you don't feel it that some problems are there. You immediately type it and drop your number also there. So I will call back to you for giving answer. So when we are talking about the dukha, dukha सबको common होना चाहिए, nobody want it and it is nobody can avoid it. So the 4 kinds of the problems are there in our life. उनको हम दुख कहते हैं, बाकी कोई दुख नहीं है जीवन में, 4 ही प्रकार के दुख है जीवन में। What all are they? Birth, old age, disease and death. जन्म एक दुख है। आप बोलेंगे कि भाई जन्म कैसे दुख होता है? जन्म दुखद सिचुएशन है, हमें सिर्फ उसको महसूस नहीं होते हैं, नहीं तो अगर हम देखेंगे तो 9 महीने तक तो उल्टा लटकाया जाता है माँ के गर्भ में। एंड जब बच्चा जन्म लेने के बाद जब तक वो खुद बोलना या अपना एक्सप्रेस नहीं करता है तब तक माँ तो ख्याल कर रही है उसका, लेकिन बहुत ऐसा होता है कि वो ख्याल उसके लिए दुख। इस लाइक बच्चे को चींटी ने काटा, बच्चा रोने लगता है, माँ को लगी भूख लग गई, उसको वो दूध पिला रही है, उसको बच्चा परेशान है, भाई चींटी ने काटे मुझे कहीं तो, और माँ है कि क्या करने के पीछे पड़ी है, दूध पिला रही है कि बच्चे को भूख लगी है इसलिए वो रो रहा है। सो बर्थ इज द दुख है, वो कॉमन है सबके लिए। उसके बाद बर्थ के बाद है ओल्ड एज, बुढ़ापा, सबको आता है, कोई अवॉइड नहीं कर सकता और कोई भी चाहता नहीं बुढ़ापा है। दुख की बात है, दुख कॉमन टू ऑल। थर्ड वन इज द डिजीज, अलग अलग, जैसे अभी मैं बात कर रहा था ये कोरोना के बारे में, ये कोरोना डिजीज चल रहा है, तो सबको कॉमनली आना चाहिए डिजीज। एंड फोर्थ वन इज द मृत्यु, इसको भी कोई अवॉइड नहीं करता और सबको आता है, कोई इसको चाहता नहीं। So these are the 4 dukkha or the problems in our life mentioned in the Bhagavad Gita, 13th chapter, verse number 8. भगवद गीता में इसके बारे में लिखा है। Then हम कंटिन्यूअसली ये 3 दुख के साथ साथ और 3 पर ये 4 दुख के साथ साथ और कुछ क्लेश है और 3 प्रकार की परेशानियां हैं जो हमारे जीवन में आती है। 4 प्रकार के दुख हैं, ध्यान में रखना, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, ये 6 दुख और उसके साथ साथ 3 परेशानियां हमारे जीवन में। उनको 3 परेशानियां, तो उसको पहले परेशानी कही जाती है आदि आध्यात्मिक क्लेश। क्लेश है, दुख है हमारे जीवन में या परेशानियां हैं, which is called as आदि आध्यात्मिक क्लेश। एक तो ये 4 हो गए, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, ये 4 चीजें तो दुखमय है ही। उसके साथ साथ दुख कहाँ से आता है? हमारी अपनी आत्मा से आता है, आध्यात्मिक क्लेश, which is called as the mind problem in our society. People are having tension, stress, they are doing suicides and all. That is because of what? Because of our own mind. Our mind is giving problem to us. Our mind is giving suffering to us. What kind of the problems and suffering mind is giving to us? Like you just see,
दो दोस्त खड़े होकर बात कर रहे हैं और वो तीसरा दोस्त उनको दूर से देख रहा है, तो तीसरे दोस्त को लगता है कि शायद ये मेरी ही बुराई कर रहे हैं, शायद मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं. This is the problem with mind. You see, the more mind problems are there. So many young people are committing suicide. College people are committing suicide. Because of what? The miseries due to our mind and body. Then the second one is Adi Bhautika Klesha. The miseries which is given by the other living entities. They are also giving us miseries. वो लोग भी हमें दुख देते हैं, वो भी क्लेश देते हैं, उसको आदि भौतिक क्लेश कहते हैं, which is given by other living entities. It's like other living entities are giving the kleshas to us, like mosquitoes are biting, and then we are getting the malaria, dengue, and pneumonia, and not so many other diseases. So this is the kleshas are given by the other people, other living entities. Sometimes snakes biting, sometimes some चोर आके हमारा कोई चुरा के लेके जाता है. तो ये सभी के सभी आदि भौतिक क्लेश. पहला हमने देखा आदि आध्यात्मिक क्लेश मन के द्वारा, दूसरा देखा आदि भौतिक क्लेश जो कि अदर लिविंग एंटिटीज है. एंड थर्ड वन इज आदि दैविक क्लेश. तीसरा जो है वो आदि दैविक क्लेश है. आदि दैविक मतलब देवताओं द्वारा या प्रकृति द्वारा दिए जाने वाले कष्ट. क्या क्या होता है देवता या प्रकृति द्वारा दिए जाने वाला कष्ट? हो सकता है कहीं भूकंप आ जाए, हो सकता है अभी बारिश का सीजन चल रहा है, कई जगहों पे बाढ़ आ गई होगी, और कई जगह पे बहुत तेजी से हवाएं चलती है, बहुत बड़े भवंडर खड़े हो जाते हैं और उस भवंडर की वजह से बहुत सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं. तो ये सब चीजें जो है इसको आदि भौतिक क्लेश कहते हैं. ये सब जो है चार प्रकार के जो हमने पहले देखे, दुख, पर ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ, और ये तीन प्रकार के क्लेश आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक. These all 7, 4 plus 3 are the 7 things are there which are making our life as miserable. ये हमारा जीवन को क्या बनाते हैं? दुखमय बनाते हैं. Even we are not wanting it. We are doing so many scientific technological advancement, and also these technological advancements are not ready to put a full stop on ourselves. Whatever we can do, the technological advancement, one scientist says that human can fly like a bird in the sky, and he can fly in the bird like a bird in the sky by using the aeroplanes and all, and he can swim inside the ocean like a fish by using the submarines and all. But he's saying because of the pollution, he can't stay on a ground like इंसान के अलावा जमीन पे नहीं रह सकता है, इतना pollution होता है. So even we are trying to have some solution on this by creating some facilities to the science and all, लेकिन फिर भी हमारी परेशानियां कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है. साइंटिफिक सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स कई सारे हैं हमारे जीवन में, उसको हम साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं. व्हाट द साइंटिफिक्स आर गिविंग द सॉल्यूशन. बोलेंगे तुम्हारे बाल सफेद हो गए, क्या करो? हेयर डाई लगा दो, बाल को काला करो. रिंकल्स आ रहे बॉडी के ऊपर, क्या करो? फेस लिफ्टिंग करके कुछ टेक्नोलॉजी है, उससे थोड़ा सा आप रिंकल्स को कम किया जा सकता है. ये फास्ट कर दे रहे हैं तो तुम्हारा चेहरा फिर से जवान दिखने लगेगा. डिजीज है कई सारे तरह की, तो क्या कह रहे हैं, कई सारे पेन रिलीफ टैबलेट्स है, कई सारी गोलियां हैं और कई सारी चीजें हैं, खा लो उससे. और अगर तुम्हें ब्रेथलेसनेस वगैरह लग रहा है, सांस नहीं ले पा रहे तो क्या करेंगे? डॉक्टर ऑक्सीजन आती है. But it is not putting the full stop on our miseries. These all are temporary solutions. Technologies are giving the solution. They are just a temporary. There is nothing full stop. They are not going to put a full stop on our miseries. हमारे दुख के ऊपर किसी भी प्रकार का full stop नहीं लगा सकते, और इसलिए हमारा जो दुख है वो बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं हमारा, भले ही हम विज्ञान के द्वारा भी आगे जाने का प्रयास भी क्यों ना करें. So whatever the solutions are given by the science to our miseries, वे कुछ लोग सोचते हैं कि सब कुछ केवल विज्ञान से मनुष्य का जीवन पूरा आनंद में जिंदा है, और कई सारी फैसिलिटी सुविधाएं विज्ञान देने का प्रयास कर रहा है. But it is not the full stop on ourselves. Why it is not full stop?
because the solution given by the science, that the solution is like getting the fish out of water, मच्छी को पानी के बाहर निकाल के उसको बाकी सभी प्रकार की फैसिलिटीज हम देंगे, उसको अच्छा मदिरा दारू दे दो, उसको सिगरेट दे दो, उसको पब में लेके जाओ, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो मछली खुश नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसको खुशी पानी के अंदर है, उसको पानी से बाहर निकाल के आप कुछ भी उसको फैसिलिटीज दे दो, वो कुछ नहीं दे सकते। हम जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट वगैरह कह रहे हैं और उसके द्वारा, टेक्निकल एडवांसमेंट के द्वारा जो भी चीजें हम सोच रहे हैं कि हम हमारे दुखों के ऊपर फुल स्टॉप लगाएंगे, तो फिर वो ये ऐसा सोल्यूशन है, मछली को पानी के बाहर निकालने का है। सो आवर रियल प्रॉब्लम इज whatever we are getting suffering and all, that is because of our activities that we are not asking. That the human can ask about the dharma, and when he asks about the dharma, his suffering will get reduced. Till the time he is not asking the dharma, is like the animal. Human can ask again, we are going that the human can ask about the what is the goal of my life, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न पूछ सकते जो कि बाकी के लोग नहीं पूछ सकते। And then Krishna is saying that this material body and the soul is the different. Soul is staying in this body and it is the impersonal. उसको मार नहीं सकते। Krishna is saying in the Bhagavad Gita, this material body is temporary, ये शरीर है और इसके अंदर एक आत्मा रहती है जो कि परमानेंट। When we feel it's the death and all, तो भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में कि जैसे हम एक पुराना शर्ट खराब होने के बाद उसको फेंक देते हैं और एक नया शर्ट पहन लेते हैं, the same way आत्मा एक शरीर जीर्ण होने के बाद उसको एक नया शरीर मिलता है। This is only what happens. Atma is never going to die. We just leave one old body and accept another one. But the problem is with us, instead of taking care of our dharma, taking care of our soul, we are not this body, we are soul, forgetting, understanding this knowledge from the scripture. And taking care of the soul, we are busy to just take care of the things. जैसे पिंजरे में पंछी को बंद रखो, उस पंछी का ख्याल मत रखो, सिर्फ आप पिंजरे का ख्याल रखने से वो पंछी कुछ नहीं होगा। The same way, we are not getting the true knowledge that we are a soul staying in this material body and we have to work on that platform. If soul can be happy, we can get all the happiness. But we are problem, we are just providing facilities to the body. And how to give the happiness to the souls? It is mentioned in the scripture. वेदांत में ये बात लिखी हुई है। लेकिन बहुत बार हम क्या कह रहे हैं, भगवत गीता हो या अदर वेद आदि पुराण है, उनके ऊपर हम विश्वास नहीं रखते, बोलते नहीं ये सब माइथोलॉजी, अंग्रेजों ने बोल दिया ये सब माइथोलॉजी है तो हमने भी स्वीकार कर लिया ये सब माइथोलॉजी। कहते हैं कि इसका कोई दूसरा प्रमाण नहीं है कि वेद सच है या नहीं है, ये सब किसी के मन गढ़ंत कहानी है। अच्छा ठीक है, वेद जो है वो मनगढ़ंत कहानी है, फिर बाइबल की मनगढ़ंत कहानी नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने कह दिया कि नहीं हमारे पास जो भी है वो सब सच है और तुम लोगों के पास है वो सब बुरा है, we just accepted Vedas and all that. But if you see practically, Vedas are not mythologies. वेद कोई भी ऐसा मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, क्योंकि वेदों में कई सारी चीजें लिखी हुई है जो अनडिफिटेबल है, जो बाद में विज्ञान ने खोजी, लेकिन उससे पहले से ये बातें कई सालों पूर्व लिखी गई है। क्या जैसे वेदों में आप देखेंगे कि जीसस के कई पहले अथर्ववेद में जीसस के बारे में लिखा हुआ, जीसस इज गोइंग टू कम। भविष्य पुराण में प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में लिखा है, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद आने के कई सालों पहले भविष्य पुराण लिखा गया है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में श्रीमद् भागवतम में और महाभारत में लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध के बारे में श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवतम गौतम बुद्ध आने के कई सालों पहले लिखा गया था। चाणक्य के बारे में भागवतम में लिखा है, चाणक्य उसके बाद आए हुए। यहाँ तक कि द ग्रेट एम्पायर अशोक के बारे में भी लिखा हुआ है शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में लिखा हुआ है। लेकिन ये सभी पुस्तकें या ये सभी ग्रंथ है, ये लोग आने के पहले कई गुना पहले लिखे गए थे।
और भी कई सारी वैदिक चीजें हैं जो कि जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, जो कि वेदों में लिखी है, बाद में उसको साइंस ने ढूंढ के निकाला है। प्लांट्स हैविंग अ लाइफ, वृक्षों में जीवन होता है, ये बात तो भागवतम में या और कई सारे वैदिक ग्रंथ में कई सालों से लिखी है। लेकिन विज्ञान तो पहले नहीं मानता था कि पेड़ों में कोई जीव भी होते हैं करके। प्लांट्स आर हैविंग द लाइफ, लेटर ऑन दे स्टार्टेड बिलीविंग यस यस प्लांट्स हैविंग द, आफ्टर दैट हाउ द जो भ्रूण है वो शरीर में माँ के गर्भ में कैसे बढ़ता है, वो साइंस को तो बाद में पता चला, लेकिन वेदों में पहले से लिखा हुआ है कि कैसे कैसे बॉडी का डेवलपमेंट होता है। एंड साइंस इज नाउ टेलिंग दैट दैट इज करेक्ट, जैसे वेदों में लिखा है वैसे ही बॉडी का डेवलपमेंट होता है। और इतना ही नहीं, और भी कई सारी चीजें हैं जो वेदों में लिखी हुई है, एंड दैट थिंग्स आर इवन ऑन द प्लेटफॉर्म साइंस। वही सभी चीजें जैसे हम देखते हैं कि आजकल काउडन और गोमूत्र को भी पैटर्न दे दिया, जबकि भारत भूमि में या वैदिक काल से गोमूत्र आदि को औषधि की तरह यूज किया जा रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है, अभी साइंस उसको पैटर्न आदि दे। सो बेसिकली हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो ज्ञान पूरा का पूरा सही है, लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा उस वैदिक ज्ञान की तरफ घूमना है, सो वी कैन very easily understand that what is the Vedic philosophy, what is the Bhagavad Gita, what is the higher dimension science mentioned in the Bhagavad Gita। एक उच्च गति का विज्ञान के बारे में कहा गया है वेदों में, जिसको हम ठीक से समझ पाएंगे अगर हम वेदों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। Now, how to understand the Veda? It's the big question। कैसे उनको समझे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे। आजकल आप अगर नेट खोलोगे तो इंटरनेट के ऊपर भगवत गीता पढ़ाने वाले ऑलमोस्ट आपको 200-300 कोर्सेस मिल रहे हैं जो आपको ऑनलाइन भगवत गीता पढ़ाने, वेद पढ़ाने वाले, धर्मशास्त्र पढ़ाने वाले या वैदिक ज्ञान देने वाले कई सारे लोग आपको मिलेंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम फ्रॉम वेयर टू लर्न इट। Even these all things are given in the Vedas, then from whom to learn this all? So see, there is the 4 sampradayas are mentioned in the scripture. They are the authentic sampradayas. Like we are having the universities. Universities are bona fide by whom? By the UGC. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करके भारत में वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी bona fide या नहीं। और जब हम कॉलेज में भी जाते हैं, so we see that college also should be affiliated to some university. कॉलेज में नहीं आप कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे अपने मन को ले बचे, no, that college should be affiliated to some university. So the same way there are the 4 sampradayas are mentioned through which we can get the knowledge, जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वो 4 संप्रदाय है, उसमें से प्रथम संप्रदाय लक्ष्मी संप्रदाय या श्री संप्रदाय कहते हैं उसको। उसके कलयुग में आचार्य होके गए, जिन लोग, अगर आप में से कोई साउथ इंडियन है तो जानते होंगे, रामानुजाचार्य, जो कि कलयुग में उनके प्रतिष्ठाता आचार्य है। साउथ इंडिया में श्री संप्रदाय के कई सारे आपको फॉलोअर्स दिखेंगे। दूसरा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, उसके कलयुग में आचार्य होके गए ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य। अगर कोई कर्नाटक से वगैरह है तो उनको पता होगा, उडुपी नामक क्षेत्र है जहाँ पे मध्वाचार्य की समाधि आदि है। इस्कॉन जो है वो ब्रह्म संप्रदाय से आता है, इस्कॉन की पूरी फिलोसॉफी जो है वो ब्रह्म संप्रदाय से आई हुई है। तीसरा जो संप्रदाय है वो रुद्र संप्रदाय या शिव संप्रदाय कह सकते हैं, उसके कलयुग में आचार्य थे विष्णु स्वामी। चौथा संप्रदाय है उसको कुमार संप्रदाय कहते हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है, सनक, सनातन, सनंदन एंड सनत कुमार। इन चारों से जो संप्रदाय आगे चला उस संप्रदाय का नाम है कुमार संप्रदाय, और जिसके कलयुग में आचार्य होते निम्नाचार्य। अच्छा, अभी हमें ये संप्रदाय से नॉलेज क्यों लेना चाहिए भाई? हम खुद होके भगवत गीता या बाकी सब चीजें पढ़े या कोई भी पढ़ा रहा है उससे पढ़ने से नहीं काम चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक शॉर्ट स्टोरी कि अगर 5-6 अंधे लोग मिलके अगर हाथी उनके सामने आ जाए, लेकिन ये अंधे हैं और हाथी को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो व्हाट दे विल अंडरस्टैंड नथिंग। कोई हाथी का कान पकड़ेगा और कहेगा अरे हाथी एक कुराड़ी की तरह होता है। कोई हाथी के दांत पकड़ेगा और क्या कहेगा, हाथी एक बहुत बड़े किले की तरह है। कोई हाथी के सूंड पकड़ेगा और सोचेगा कि हाथी एक कैसा है, सर्प की तरह है। कोई हाथी की पूंछ पकड़ेगा और सोचेगा कि हाथी मतलब क्या होता है, रस्सी। Why? Because they all are blind, not able to understand how is that. But if they want to really understand how is that, then they have to go through the
द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द नॉलेज। ज्ञान प्राप्त करने की कुछ पद्धति होती है, उसके थ्रू उनको जाना पड़ेगा। अच्छा, ज्ञान प्राप्त करने के कौन से तरीके हैं? तो ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके। प्लीज पे अटेंशन। मैं बहुत सारी चीजों में आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। हमने देखा पहले भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर है भगवत गीता के। जिन भी लोगों को याद है तो आप फिर से कृपा करके उसको क्या करो, जस्ट टेक्स्ट इट and text your name also, and if you are having question you text it and drop your number, I will call back to you, give the answer of your question. तो 5 विषय वस्तु थे भगवत गीता के, जीव, प्रकृति, काल, कर्म और परमेश्वर हमने देखा। उसके बाद हमने देखा there are the 4 things are common between human and animals: eating, meeting, sleeping and depending. उसके बाद हमने देखा धर्मो हितेशो अधिको विशेषो, धर्म के बारे में इंक्वायरी कर सकता है ह्यूमन, एनिमल कैन नॉट अंडरस्टैंड अबाउट द धर्म। फिर हमने देखा अगर हम सुख ढूंढ रहे हैं तो दुख क्यों आते हैं। तो पहले हमने देखा कि दुख किस चीज को कहते हैं। तो दुख के लिए हमने 3 क्राइटेरिया लगाए थे। इट्स कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट इट, नोबडी अवॉइड इट। सबके लिए वो कॉमन होना चाहिए, कोई भी इसको नहीं चाहता है और कोई भी इसको क्या नहीं कर सकता है, अवॉइड नहीं कर सकता है, त्याग नहीं सकता है उसको। उसके बाद फिर हमने आगे देखा कि हमें क्या करना चाहिए, वेदों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। धर्मों से, धर्म की इंक्वायरी चाहिए, हमें वेदों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा? तो हमने अभी भी देखा 4 संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। अच्छा, इन चारों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लेकिन ज्ञान कैसे प्राप्त करें? तो ज्ञान प्राप्त करने की 3 विधियां कही गई है। उसमें से पहला हमें ज्ञान प्राप्त होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का अनुमान प्रमाण, और तीसरा तरीका है शब्द प्रमाण। तो इसको देखते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जो चीज हम देखते हैं उसी के ऊपर विश्वास है। जो चीजें मैंने अपने आंखों से देखी वही चीजों के ऊपर अगर मैंने विश्वास कर दिया उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। लेकिन फिर जो हम देखते हैं उसके ऊपर अगर विश्वास करेंगे तो कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, हमें पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं होता। Why we are not getting full knowledge? Because what we are seeing that might be not true. क्योंकि आप देखिए कभी कभी हम एक सीधी लकड़ी पानी में डाल देते हैं तो पानी में डालने के बाद वो टेढ़ी दिखती है। वास्तव में वो टेढ़ी होती नहीं है, लेकिन पानी में टेढ़ी क्यों दिख रही है? Because it is the problem with our senses. When we are seeing, we are believing what we are seeing. हम जो चीज देखते हैं उसके ऊपर अगर हम विश्वास करने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास चाटनियां है, जिसके वजह से हम प्रत्यक्ष जो चीजें देखेंगे उससे हम नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ चाटनियां चीजें हमारे पास इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां पूर्ण है। टू बी इल्यूजन, हमारी इंद्रियां बहुत जल्दी क्या हो जाती है, माया में आ जाती है। कैसे माया में आ जाती है? जैसे अगर आपने पहले शुगर खा लिया और उसके बाद बिस्कुट खाने का प्रयास किया तो बिस्कुट मीठा नहीं होता, हमारे इंद्रियों के साथ होता है। उसके बाद टेंड टू कमिट मिस्टेक्स, हमारी टेंडेंसी है, टेंडेंसी टू कमिटिंग मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं। कुछ होती है चीटिंग प्रोपेंसिटी, कभी कभी क्या है हम गलती करने के बाद भी उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। इसलिए व्हाट वी सी वी कैन बिलीव ऑन दैट बिकॉज़ वी आर हैविंग दिस फोर डिफेक्ट विद आवर सेंसेस। एंड द सेकंड थिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग which we saw, that is the अनुमान प्रमाण। हम कभी कभी अनुमान प्रमाण का उपयोग करते हैं। अगर आप विज्ञान देखोगे ना तो विज्ञान मेजॉरिटी टाइम चलता है अनुमान प्रमाण के साथ। हम कहते हैं कि विज्ञान प्रत्यक्ष पे चलता है, लेकिन विज्ञान प्रत्यक्ष नहीं चलता। जो लोग साइंस पढ़े हैं उनको अच्छे से पता होगा कि विज्ञान में ज्यादा से ज्यादा अनुमान ही लगाया जाता है। सूरज से लेकर पृथ्वी का डिस्टेंस इतना है कि किसी से टेप लेकर प्रत्यक्ष मेजरमेंट नहीं किया है। ये किस पे चल रहा है? इसका सब अनुमान तो चल रहा है। बहुत बड़ा सब, मैंने भी जब पढ़ रहा था मैं इंजीनियरिंग का, हम लोग भी ये सब सवाल करते थे। 3-3, 4-4 पूरा मैथमेटिक्स होता है। सॉल्व करने के बाद कहीं पे एक जगह पे आंसर मिलता है। लेकिन ये क्या है? ये सब के सब अनुमान है। अनुमान में बड़ा डिफिकल्ट है आपको रियल नॉलेज होना। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन वो भी पूर्ण रूप में ठीक नहीं हो सकता। अनुमान प्रमाण से ज्ञान प्राप्त होता है, वो भी पूर्ण रूप में ठीक नहीं होता। फिर जो तीसरा पद्धति है ज्ञान प्राप्त करने की, वो शब्द प्रमाण। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि शब्द प्रमाण से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके ऊपर भरोसा होता है। शब्द प्रमाण किस चीज को कहते हैं? इट्स लाइक नाउ यस आई गिव यू द वन सिंपल एग्जांपल। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है प्रत्यक्ष शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण ऐसा होता है जैसे कि अगर कोई बच्चा अपने पिता को ढूंढना चाहता है, उस कैसे उसको पता चलेगा?
वो अगर अपना डीएनए टेस्ट करवाएगा तो पूरे दुनिया भर में इतने सारे लोगों के साथ डीएनए टेस्ट करवा के बारे में पता करना पड़ा है मुश्किल बना, क्योंकि कैसा है, ये अनुमान प्रमाण है। बहुत बार एक व्यक्ति का डीएनए अपने पिता के साथ, पिता के भाई के साथ, अपने दादा के साथ, मामा के साथ, कई सारे लोगों के साथ मैच होता है, इसलिए उसका पिताजी पीठ को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। लेकिन शब्द प्रमाण किसको कहते हैं? द वर्ड्स फ्रॉम द bona fide authority. If you can go and ask his mother कि my dear mother, who's my father, और मम्मी बता देगी कि ये व्यक्ति तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारे पिता है। हम सबको ऐसे ही पता चल रहा है। और मदर told us कि ये पिता है करके, इनको पापा बोलो, पापा बोलो, पापा बोलो, and we all started saying the papa. So this is called as the शब्द प्रमाण। bona fide authority ने बोल दिया, that's it, वो क्या है, ज्ञान पक्का है। और पूरी दुनिया में भी हम शब्द प्रमाण के ऊपर ही चलते हैं। कैसे चलते हैं? जैसे हम कॉलेजेस में वगैरह जाते हैं, तो कॉलेज क्या है, यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड एक बार कॉलेज है तो हम पूरा ब्लाइंडली सोचते हैं कि ये यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, मतलब ये जो भी सिलेबस सिखाएगा वो इंजीनियरिंग का ही सिखाएगा, इंजीनियरिंग में कॉमर्स नहीं पढ़ाएगा, कॉमर्स में साइंस नहीं पढ़ाएगा, साइंस में आर्ट्स नहीं पढ़ाएगा, ऐसा कुछ नहीं है पढ़ाएंगे, क्योंकि ये बोना फाइड ऑथोरिटी है, उनका बोना फाइड शब्द प्रमाण। वैसे ही जैसे हमने ये जो 4 संप्रदाय थे वो भी शब्द प्रमाण के द्वारा ज्ञान प्रदान करते हैं, उनमें जो आया हुआ ज्ञान है वो ज्ञान बोना फाइड, जैसे कि कॉलेज का ज्ञान बोना फाइड। इसलिए हमें शब्द प्रमाण के द्वारा ज्ञान लेना चाहिए, जिससे हमें पूरे वैदिक जो ज्ञान दिया हुआ है उसके बारे में ठीक पता चल सकता है, बहुत पिता। सो थैंक यू वेरी मच। ये कुछ चीजें थी जो हमने फर्स्ट सेशन में कवर की, पूरी हम भगवद गीता को नटशेल में देखने का प्रयास कर रहे हैं, पूरा ऊपरी देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने कई सारी चीजों के ऊपर आज डिस्कशन किया, उसमें जस्ट वन लास्ट थिंग जो कि मैंने बिगिनिंग में बोली थी कि मैं आपको बताऊंगा कि धर्म किस चीज को कहते हैं। धर्म मीन्स नॉट हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म। धर्मो ही देशो अधिको विश्व। धर्म एक चीज जो कि इंसान समझ सकता है, नहीं समझ सकता, जो हम बिगिनिंग में डिस्कस कर रहे थे। धर्म उस चीज को कहते हैं थिंग्स कैन नॉट बी चेंज, जिस चीज को बदला नहीं जाता उसको धर्म कहते हैं। नहीं तो आजकल लोग क्रिश्चियन से हिंदू बनते हैं, हिंदू से क्रिश्चियन बनते हैं, धर्म नहीं है, बदलने वाली चीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे करेला जो है उसका धर्म क्या है? कड़वापन, उसका धर्म है, आप करेलों को शुगर में डालो, कितने भी रिफाइंड तेल में उसको फ्राई करो और भी कुछ करो उसके साथ, वो कड़वा का कड़वा ही रहेगा, बिकॉज कड़वापन उसका धर्म। वैसे ही शुगर को ले लो, मिठास उसका धर्म, उसको आप किसी भी चीज में मिला दो वो मीठी लगेगी, धर्म है उसका। पानी का अपना धर्म है, उसकी अपनी टेस्ट है, वो बदला नहीं जा सकता, उसको धर्म कहते हैं। धर्मो ही देशो अधिको। अभी मनुष्य के लिए क्या धर्म है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन कि आप लोग अपने प्रेजेंटी के लिए अपना ही नाम डालिएगा आपके लॉगिन आईडी में। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस कमेंट देने हैं तो आप ड्रॉप कीजिएगा टेक्स्ट में। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज उसके साथ आपका नंबर ड्रॉप कीजिएगा, सो आई कैन कॉल बैक टू यू टुमारो एंड गिव द आंसर्स ऑफ योर ऑल द क्वेश्चंस। Thank you for attending this class. You can ask the doctor on 96196. Or you may have more doubts, so you can ask on that WhatsApp number also. Through that number, you are getting the information about the login ID, Zoom ID, and all. You can ask questions on that WhatsApp number also. There also, I can give the answers to your questions. So, thank you for attending to this class. Hare Krishna.